Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, said, and I quote, "Yoga is an invaluable gift of ancient Indian tradition. It embodies unity of mind and body, thought and action, restraints and fulfillment, harmony between the man and nature, and a holistic approach to health and well-being. Yoga is not about exercise, but discovers a sense of oneness with ourselves, the world and the nature. Changing our lifestyle and creating consciousness can help us to deal with the climate change. Let us work towards adopting an international yoga day." This was, of course, a statement made by the Honorable Prime Ministers at the United Nations General Assembly. Unquote. And since the celebration of the first Yoga Day in 2015, Ministry of Earth Sciences has been celebrating International Day of Yoga in a befitting manner. Likewise, this year also, we are celebrating the International Day of Yoga on 21st of June at 6:45 AM in collaboration with IMD and the IMD campus. As a precursor to the International Day of Yoga on 21st of June, today we have invited Shrimati Harpreet Kaur Sodhi from Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, to give us an insight into the benefits of yoga to common man, and also to take us through some yoga exercises which we could perform while on desk in office or at home. As far as Shrimati Harpreet Kaur is concerned, I would like to state that she is a seasoned yoga professional with 9 years of experience in central government sector, holding a diploma in yoga sciences from Morarji Desai National Institute of Yoga, Ashtanga Yoga certification from Rishikesh, advanced yoga sadhana from Morarji Desai National Institute of Yoga, and a master's degree in yoga therapy from Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Ashram, Bangalore. She currently serves as a yoga instructor at the Morarji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush. She has traveled globally, sharing her expertise and knowledge of yoga. She has delivered over 100 live yoga sessions on television in collaboration with Ministry of Ayush. With this, now I would request Shrimati Harpreet Kaur to take the proceedings further from here on. नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हरप्रीत कौर है, जैसा कि सर अभी बता चुके हैं। और मैंने जैसे शुरू में आपने अभी सुना, 1 बार ओम और 3 बार शांति बोला है। तो इसका मतलब क्या है? 3 बार आप सभी बोलते भी होंगे, कई बार आपने योग अभ्यास किया है, काफी सारे यहाँ पर ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स होंगे जो कर चुके हैं, लेकिन उनको मतलब नहीं पता होगा कि 3 बार शांति ही क्यों बोला जाता है। तो इसी के पीछे मैं आपको ना एक शुरुआत में एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि योग बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने काम की वजह से, बिजी शेड्यूल की वजह से इन सब चीजों को भूल जाते हैं कि हमारे लिए योग क्यों जरूरी है। ठीक है, तो एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी ये जो 3 बार हमने शांति बोला था, क्यों बोला था। एक बार क्या होता है, कहानी सुनना मुझे लगता है सभी को अच्छा लगता है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ स्टोरी से जुड़ी हुई है। एक राजा होता है और उस राजा की 4 रानियां होती हैं। अब देखिए, सभी के चेहरे पे मुस्कान आ गई है कि हम यहाँ पर एक नहीं होती, 4 रानियां। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 4 रानियां हैं। चौथी रानी जो होती है वो राजा की फेवरेट, पसंदीदा रानी होती है, जिसके पीछे लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी राजा भागता रहता है। तीसरी नंबर की जो रानी होती है वो भी उसकी पसंदीदा रानी होती है, लेकिन चौथी वाली से थोड़ी कम। इसी तरह से दूसरे नंबर की जो रानी होती है वो भी थोड़ी तीसरी से कम, और जो फर्स्ट नंबर की रानी होती है राजा की, उसको वो कभी देखता ही नहीं है, मतलब नजरअंदाज कह सकते हैं। अब एक दिन क्या होता है, राजा बीमार पड़ जाता है, इतना ज्यादा बीमार पड़ जाता है कि उसका मरने का समय पास आ जाता है। अब मरना तो सभी को है, लेकिन जब मृत्यु पास आती है तो मृत्यु पास आते ही सभी को डर लगने लगता है, सभी भयभीत हो जाते हैं, है ना। और उस टाइम पर राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा को बहुत डर लगने लगा और राजा के मन में एकदम से आया कि मैं मर जाऊंगा और मुझे मेरे साथ मेरी 4 रानियां हैं, तो क्यों ना जैसे पति पत्नी बहुत सारी कस्में लेते हैं, मैं अपनी एक रानी से बोलूं कि मेरे साथ चलो, तो शायद मेरा डर थोड़ा कम हो जाए। तो राजा ने बस इसी सोच के साथ अपनी 4th नंबर की रानी को बोला कि मैं मरने जा रहा हूं और मैंने लाइफ टाइम आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो आप मेरे साथ चलो।
लेकिन 4th नंबर की रानी कहती है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, वो कहती है कि मैं क्यों जाऊं, आप बेवकूफ हो, मैं इतनी खूबसूरत हूं, आप चले जाओगे, मृत्यु आपकी आई है तो आप मरिए, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। सीधे मना कर देती है। अब राजा बहुत परेशान हो जाता है, उसकी मृत्यु 1 महीने के बाद आती तो उसकी मृत्यु 15 दिन में ही आ जाए, इतना दुखी हो जाता है वो। फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, तीसरे नंबर की, मेरी तो 4 रानियां हैं, तीसरे नंबर की रानी को बुलाता है, उससे भी यही पूछता है कि मैं मरने वाला हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है और तुम मेरे साथ चलो। लेकिन तीसरे नंबर की रानी भी मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इतनी समझदार हूं, दुनिया के जितने भी परेशानियां होती है सारे राजा अपने हल लेकर के, अपने प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं और हल रानी के माध्यम से उनको मिल जाता है। तो वो कहती है कि आपके जाने के बाद मैं यहाँ राज करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो भी मना कर देती है साफ। अब राजा को बहुत ज्यादा दुख होता है कि जिनके पीछे मैं पूरी जिंदगी भर भागता रहा, उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर भी वो थोड़ी हिम्मत दिखाता है, दूसरे नंबर की रानी को बुलाता है। दूसरे नंबर की रानी भी मना कर देती है। अब राजा सोचता है जिनको मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, उन्होंने ही पहले मना कर दिया, तो पहले नंबर की रानी तो मैं उससे कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकता। लेकिन पहले नंबर की रानी ये सब देख रही होती है। वो आती है और आकर बोलती है कि मैं आपके साथ चलूंगी। और राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये खुशी के आंसू, कि जिसको मैंने पूरी जिंदगी भर नहीं पूछा वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। अब कहानी का मोटिव आता है कि ये जो 4 रानियां हैं ना, अभी आप सभी के साथ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी रानियां हैं? कोई बता सकते हैं 4th नंबर की रानी कौन सी है जिसके पीछे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया सर ने, पैसा। पैसा ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए ना चाहते हुए स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, है ना। कभी कभी कई बार होता है कि नहीं आज जॉब पर नहीं जाए। कई बार कुछ लोग खुश होकर जॉब करते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती पैसों के लिए जॉब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा चाहिए होता है तो जॉब सबको करनी है। लेकिन जब मृत्यु आती है तो पैसा किसी का किसी के साथ नहीं जाता, बल्कि होता क्या है, जिंदगी भर हम सोचते हैं कि हमें पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। जब मृत्यु आती है उस पैसे के ऊपर सब अपना हक जताने आ जाते हैं, हर कोई उस पैसे को लूटने आ जाता है, लेकिन आपके साथ पैसा नहीं जाता। इसी तरह से हमारी जो तीसरे नंबर की रानी है, कौन सी हो सकती है? पैसे के बाद पैसा मिल गया, अब क्या चाहिए? घर चाहिए, है ना। घर के पीछे भागते हैं कि पैसा तो आ गया है, अब एक अच्छा सा बंगला, एक अच्छा सा घर और गाड़ी मिल जाए। तो घर और गाड़ी भी किसी के साथ नहीं जाती। हमने पूरी जिंदगी घर बनाने में लगा दिया, और जब हमने घर बनाया तो घर बनाने के बाद क्या हो गया, उस घर से ही आपको निकाल दिया गया। जब घर में रहने की बारी आई, गाड़ी ली, गाड़ी में बैठने की बारी आई तो गाड़ी का टायर तो ठीक है, लेकिन खुद का टायर पंक्चर हो गया, पैरों से नहीं चला जा रहा है, जोड़ों में दर्द है। सही कह रही हूं ना, गलत कह रही हूं? इसी तरह से दूसरे नंबर की भी रानी है। दूसरे नंबर की रानी, पैसा भी मिल गया, बंगला भी है, गाड़ी भी है, अब शादी कर लेते हैं, बीवी बच्चे हस्बैंड रिश्तेदार परिवार के लोग दोस्त सभी की हमें इंपॉर्टेंस चाहिए होती है, हमें लाइमलाइट में रहना है, हम सबके डियर वन बने रहें। लेकिन जब मौत आती है ना तो इनमें से कोई भी आपके साथ नहीं जाता है। अब आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या बेकार सी स्टोरी है, क्यों बता रही हैं आप? इसका हमारी जो आज का टॉपिक है बेनिफिट ऑफ योग, इससे बहुत बड़ा संबंध है। क्यों? क्योंकि जब आप मरते हैं ना तो ये सभी अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। मरने के बाद हमारा शरीर एक भूत बन जाता है, सबसे पहले आपको घर से निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी 1st नंबर की रानी है, जिसको हम कभी देखते ही नहीं है, कौन सी है वो 1st नंबर की रानी? आप ही बताइएगा। बहुत बढ़िया, सही जवाब। शरीर, आपका शरीर आपके साथ जाता है, लेकिन थोड़ा सा और पास जाएंगे, शरीर से भी ज्यादा और क्लोज, आत्मा। बिल्कुल सही जवाब, सर के लिए तालियां होनी चाहिए। आत्मा बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि आत्मा को तो हम देख ही नहीं पाते, तो आत्मा के लिए क्या करना है? भाई आत्मा अगर आपकी सही रहेगी तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा, है ना। और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है आपको? योग अभ्यास करना है। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तो बीमार पड़ते टाइम क्या होता है, सभी घर के लोग आपके लिए 1 महीने 2 महीने 3 महीने आपकी केयर कर लेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी उग जाएंगे और कहेंगे कि बोझ बन गया है।
सबसे ज्यादा अगर आपके घर पे, आपके परिवार में आपकी कोई केयर करता है, इस दुनिया में अगर आपका कोई सबसे सगा है तो वो आपकी माँ होती है। लेकिन एक टाइम के बाद माँ भी परेशान हो जाती है, ठीक है। तो जब आपका शरीर अच्छा रहेगा, इसी का उल्टा, शरीर अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया है आपका, आपको पैसा, बंगला, गाड़ी सब आपके पीछे पीछे भागते हुए आएंगे, सब मिलेगा। और वहीं पर आपके रिश्तेदार भी आपके पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। एक होता है ना लाइफ में पोजीशन मिलने के बाद जब आपका स्टेटस होता है तो उस टाइम पे हर कोई आपके आगे पीछे आता है, लेकिन अभी आप बीमार पड़ जाइए, आपको कुछ दिक्कत हो जाएगी, सब दूर भागने लगेंगे आपसे। कोविड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, सभी ने देखा भी। तो कहने का तात्पर्य है कि योग अभ्यास हमारे जीवन में इसीलिए बहुत जरूरी है। देखिए, आप सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं, 24 घंटे एक दिन में होते हैं। उन 24 घंटे में मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप सारा दिन लगे रहिए, सुबह शाम दोपहर 4 बार आप योग कीजिए, नहीं। 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, है ना। और इस 24 मिनट में भी अब आप सोचेंगे कि करना क्या है। तो आपने, मैम अभी सर ने बताया, 21 जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ योग मनाते हैं, जो कि सिर्फ 21 जून को ही मनाया जाता है। और उस दिन सब रेजोल्यूशन भी लेते हैं कि हम पूरे साल योग करेंगे, हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। लेकिन लाइफ इतनी बिजी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, वाइफ्स के पास घर को संभालना है, खाना बनाना है, जॉब भी करनी है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने लिए टाइम नहीं है। हस्बैंड्स के पास भी ऑफिस में इतना सारा टास्क है, काम करना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, खुद के लिए टाइम नहीं है। आप अगर अपने लिए सिर्फ 24 मिनट निकाल लेंगे ना, तो आपका जितनी भी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप सभी मेरी बातों पे बिलीव मत कीजिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता सभी ने सुना होगा, उसमें एक बहुत ही अच्छा श्लोक दिया हुआ है, मेरा फेवरेट श्लोक है, जिसमें कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो दुःख भवति। यानी कि इसका मतलब क्या है? युक्त का मतलब है प्रॉपर, युक्त आहार विहारस्य, आपका आहार और विहार प्रॉपर हो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपके कर्म प्रॉपर हो। युक्त स्वप्न बोधस्य, आपकी निद्रा और जागृत अवस्था यानी कि स्लीप पैटर्न, किस टाइम उठ रहे हैं, किस टाइम सो रहे हैं, प्रॉपर हो। तो योगो भवति दुःख, मतलब फिर योग आपके सारे दुखों को दूर कर देगा। सिर्फ आपको क्या करना है? अपने आहार पे, विहार पर, कर्म पर और अपने स्लीप पैटर्न पर, इन 4 चीजों पे काम करना है। और इन पे काम हम कैसे कर सकते हैं? योग आपने सुबह, अब देखिए, योग से हम सोचते हैं कि योग का मतलब है, कितने यहाँ पर ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि योग का मतलब है आसन और प्राणायाम और ध्यान? हाथ ऊपर कर लीजिए। देखिए, काफी मतलब हेजिटेट नहीं करना है, सभी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए है ये सेशन। तो सबको ऐसे लगता है, शुरुआत में जब मैं आई थी ना, तो मेरा भी यही मानना था। मैं प्रोफेशनली, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, और उसके बाद बीसीए किया, मैंने एमसीए किया, उसके बाद मुझे जॉब नहीं करनी थी। क्यों? क्योंकि मुझे सारा दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठना था। मुझे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्क्रीन्स क्यों नहीं पसंद है? इसमें से इतनी हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी इमोशनल, यानी कि ओवरऑल हमारे शरीर पे इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि हम एक दिन लाचार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और मुझे ये वाला फेस नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने आसपास देखा था कि एक पहले के टाइम पे क्या होता था, 100 साल से पहले लोग जीते थे, और आजकल के टाइम में 50 भी क्रॉस कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो मुझे ये चाहिए था कि मैं जैसी अभी हूं ना, लाइवली सोल, मैं ऐसी हमेशा रहूं, फिट, फाइन, खुश, कभी कोई स्ट्रेस नहीं रहे, कभी कोई ओवर थिंकिंग, कोई तनाव मेरे मन में नहीं आए। और इसी उससे मैं योग में आई थी। और जब मैं योग में आई तब मुझे पता चला कि योग का मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम और ध्यान ही नहीं है। योग आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। योग इज द वे ऑफ लिविंग। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है और कैसे खाना है। आप जब ये सारी चीजें डिसिप्लिन में फॉलो करेंगे तो अपने आप अपने स्वास्थ्य को, अपने मन को बेहतर दिशा की ओर लेते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है कहना, करना बहुत मुश्किल है।
मैडम बहुत बिजी टाइम होता है, बिल्कुल टाइम नहीं निकलता। अरे आप सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ 24 मिनट अपने लिए तो निकाल के देखिए कभी। उसके बाद ऑफिस की अगर हम बात करें, आजकल इतना स्ट्रेस होता है, ऑफिस में इतना काम होता है, उसके बाद इतना तनाव हो जाता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं ना, कई बार उससे फ्रस्ट्रेट होकर परेशान हो जाते हैं, और दूसरे से हमारे जो साथी हैं या घर पर हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनसे हम ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, उनसे हमारी बहस हो जाती है, और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल यानी कि हमारे ऑफिस के कामकाज का हमारे जो पर्सनल लाइफ है उस पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। देखा होगा ना, घर पे भी रिश्ते खराब होने लगते हैं। लेकिन जब आप योग करेंगे ना, तो जैसे बेनिफिट्स ऑफ योग है, योग के एक नहीं अनेकों लाभ हैं, बहुत सारे फायदे हैं। आप अपने स्वास्थ्य को तो अच्छा रखेंगे ही, लेकिन जो ऑफिस का काम है, योग ऐसी, मुझे ये बताइए कौन सी चीज है जो आपको नहीं देता। मेरे पास मल्टीपल रीजंस हैं योग करने के लिए, आप मुझे एक वजह बताइए योग नहीं करने का। कोई बता सकते हैं? सिर्फ एक वजह ये है, थोड़ा सा और सोना है ना। आज शरीर में दर्द है, आज मन नहीं है। बस जिस दिन मन में ठान लिया ना, मन को बना लिया, ऑफिस भी तो आते हैं ना चाहते हुए भी आते हैं, तो बस 24 मिनट का टाइम आपको अपने लिए निकालना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे क्या क्या करना है, और 24 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल सकते, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी बताऊंगी जो आप अपने डेस्क पर बैठ करके कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो बहुत इजी, बहुत सरल लग रहा है आप सुनने में। कोशिश कीजिए सुबह के टाइम प्रण लीजिएगा इस योग दिवस पर कि आप सुबह अगर 4 बजे उठते हैं तो थोड़ा सा 15-20 मिनट पहले उठ जाइए। अगर आप अभ्यास करेंगे, अब पीछे से आवाज आई 4 बजे, तो बहुत जल्दी टाइम हो गया है। 4 बजे नहीं उठते, ऑफिस 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, 6 बजे उठते होंगे, 7 बजे उठते होंगे, 7 बजे नहीं तो 6:45 बजे उठ जाइए, है ना। थोड़ा 15-20 मिनट पहले उठ जाइए, जिस भी टाइम आप उठते हैं, और उस टाइम को ना अपने आप के लिए दीजिए, अपने आप से थोड़े दिन जुड़ के देखिए। ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 30 दिन, मेरे कहने पे सिर्फ 30 दिन करके देखो, और उसके बाद अगर ना आपकी जिंदगी बदल जाए। क्योंकि मैंने ना बहुत सारे लेक्चर्स में सभी को, पहले मैंने सोचा था कि मैं प्रेजेंटेशन बना करके लेके जाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि प्रेजेंटेशन लेके जाऊंगी, सब सुन लेंगे और फिर घर से सुनेंगे, घर से निकल जाएगी, योग डे चला गया, हो गया हमारा सेशन। देन आई थॉट कि क्यों ना इसको रियलिस्टिक बनाया जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि पर्सनली मैं कभी भी योग प्रोफेशन को चूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मुझे अपने लिए योग चाहिए था, मैं अपने लिए बहुत कंसर्न थी, और मुझे इतना अच्छा लगा कि धीरे धीरे वो सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते मुझे पता ही नहीं चला कब मैं प्रोफेशनली योग से जुड़ गई। और बिलीव कीजिए, मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग इंस्ट्रक्टर, योग प्रशिक्षिका की पोस्ट पर वर्किंग हूँ, और साथ में मैं ओपीडी में भी एज ए योग थेरेपिस्ट बैठती हूँ, जहां पर डेली ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि वो हिल नहीं पाते, बिल्कुल चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, और उनको देख के इतना डर लगता है कि क्या ये कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्या ये ठीक हो पाएंगे। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि वो जो चल नहीं रहे हैं, वो पूरे अपने घुटनों पे चलते हुए गए हैं। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, घुटनों ने जवाब दे दिया है, वो अब कूद रहे हैं। कैंसर हो गया है, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, लेकिन योग अभ्यास से वो ऑपरेशन वाली नौबत भी दूर हो गई है। अब आपको पता है कि कैंसर अगर एक बार हो जाए तो फिर उसके बाद वो कैंसर का जो सेल है ना, वो पूरी बॉडी में आपके फैल जाता है, और फिर वो रुकता नहीं है, फिर दोबारा भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो कितनी बार ऑपरेशन करवाएंगे, लेकिन योग करेंगे तो ये कैंसर होने की स्थिति भी दूर हो जाएगी। तो योग आपको बीमारियों से दूर रखता है, आपको तनाव जितना भी मिल रहा है ना, चाहे आपका प्रोफेशनली हो या पर्सनली लाइफ से जुड़ा हुआ हो, तनाव से भी दूर रखेगा। और आजकल जैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम इतना सोचते रहते हैं, मन हमारा कभी शांत नहीं होता, मन भागता रहता है। बाहर की दुनिया भागदौड़ कर रही है, लेकिन मन को कैसे रोके, इंटरनली हम अपने आप को कैसे रोक सकते हैं। तो ये सुनने में बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करवा करके दिखाऊंगी आप अपने मन पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। कभी आपको लगे ना कि ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा फंस गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है ये काम, और अर्जेंट है, अभी करके देना है, ये प्रैक्टिस करके देखिएगा। उसके बाद आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, उसका क्विकली देखेंगे, सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। क्योंकि आप अगर रियल लाइफ में भी देखेंगे ना कि
एक इंसान जो बहुत ज्यादा तनाव में है, बहुत ज्यादा परेशान है, और एक इंसान जो बिल्कुल रिलैक्स्ड है, काम, बिल्कुल धैर्य, पेशेंस के साथ है, हमेशा मुस्कुराहट के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। उस इंसान से कुछ भी पूछेंगे ना, बहुत सरलता से, सहजता से आपको हर आपकी पहेली का समाधान मिल जाएगा। सही है ना? ऐसा होता है ना? कामनेस में आप कुछ भी परेशानी का हल निकाल सकते हैं शांत मन से, लेकिन गुस्से में आप हमेशा चीजें खराब करते हैं। जब आपको गुस्सा आ रहा हो, जब आप परेशान हो, जब आप तनाव से भरे हो, जब ओवर थिंकिंग हो, है ना? तो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। 2 अभ्यास मैं आपको कराने वाली हूँ। एक तो चेयर योग, यानी कि जब आप चेयर पर बैठे हुए हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आप काम करते करते थोड़ा सा 5 मिनट का, अब ये नहीं कि चेयर पे करवाना है तो कि मैम 24 मिनट कैसे निकालेंगे, सिर्फ 5 मिनट आपको अपने लिए ब्रेक लेते हुए अपने लिए, खुद के लिए, शरीर को देना है। और उसके बाद जब आपको लगे तनाव हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो तब सिर्फ आपको अगेन 2 से 3 मिनट अपने आप को देने हैं, अपने मन को रिलैक्स, काम डाउन करने के लिए। ठीक है? तो सिर्फ इतना सा करना है। अब ये बताइएगा, यहां तक किसी को कोई कुछ चीज समझ नहीं आई हो, कुछ थोड़ा सा समझ आ रहा है, तो आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी मन बनाया है कि मैं डेली अपनी लाइफ में योग को अपनाने वाली हूं या वाला हूं? प्लीज शर्माइएगा नहीं, हाथ ऊपर कीजिएगा। थोड़ा सा तो मेरी एनर्जी का वो कीजिए। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट आप में से, देखिए मैं भी जानती हूँ 100 में से 100 तो नहीं, लेकिन आप में से मैं श्योरली कह रही हूँ 10 ऐसे होंगे यहाँ पर जिनका मेरी बातों का जरूर जिन पर प्रभाव पड़ा होगा, और वो डेफिनेटली योग को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे और मेरा मोटिव पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं योग से इसलिए नहीं जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे पैसे कमाने में, प्रोफेशनली मैंने आपको बताया ना, मेरे पास और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म था, मैं वो छोड़ करके यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर जब पैसों के साथ साथ ब्लेसिंग्स मिलती है ना, दुआएं मिलती है, वो सच में पैसों से भी ऊपर होती है। कि जब लोग बोल के जाते हैं कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं इतना मोटापा मेरा कम नहीं हो रहा था, मोटापे की, डायबिटीज की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन अब ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी दूर हो गई हैं। जो मुझे लग रहा था कि थायराइड में हमेशा लाइफ टाइम दवाइयों पे अपने लगी रहूंगी, थायराइड की दवाइयां बंद हो गई है। ये सच में होता है, ये सुनने में मैजिकल लग रहा है लेकिन रियल में होता है। तो ये सुनने के बाद जब आप खुद से करेंगे प्रैक्टिकली, तभी इन चीजों को अनुभव कर पाएंगे। अब हम सोचते हैं कि हमें कुछ बीमारी नहीं हो रही है तो हम फिजिकली फिट हैं, ऐसा नहीं है। फिजिकली फिट वही है जिनका शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, आपके भाव भी स्वस्थ है, आप सामाजिक स्तर पर भी स्वस्थ हैं। कहने का तात्पर्य, आपके शरीर में भी कोई बीमारी नहीं हो रही है, मन पूरी तरह से रिलैक्स है, कुछ भी परेशानी, कुछ भी दुविधा आ जाए, कितना भी बड़ा लाइफ में आपको चैलेंज मिल जाए, लेकिन हर स्टेट में, हर परिस्थिति में आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं, आप काम हैं। ठीक है? और इसके साथ साथ हमारे इमोशंस, यानी कि आजकल आप देखते होंगे कि इमोशंस आजकल ऐसे हो गए हैं कि हम हर किसी से छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर लेते हैं। तो आप नहीं कह सकते कि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना ये भी बताता है कि आप भावनात्मक स्तर पर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। ठीक है? सामाजिक स्तर पर आपका समाज के प्रति कैसा व्यवहार है। तो ये सभी चीजें हमें बताती हैं कि हम स्वस्थ, एक होता है वेलनेस, एक होता है वेलबींग। तो वेलबींग स्टेट हम कहेंगे जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आप सामाजिक हर एक स्तर पर अपने आप को स्वस्थ रखें। ठीक है? अब हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए। अपने हाथों की उंगलियों को पहले नमस्कार स्थिति में आएगी लेकर आपस में फंसाइए, इंटरलॉक कीजिए। अब यहीं से हथेलियों को पलटते हुए सर के ऊपर ले जाइए, दोनों हाथों। बहुत अच्छे। इस दौरान सभी की उंगलियां आपस में मिली रहे, अंगूठे मिले रहे, कोहनियां पूरी तरह सीधी रहे और कमर गर्दन सीधी रहे। अब देखिए कितने सारे ऐसे हैं जो बोलते हैं मैं स्वस्थ हूं, कोहनी ही सीधी नहीं कर पा रहे हैं, कमर ही सीधी नहीं कर पा रहे हैं। जिनके हाथ, कमर सीधी हो गई है, हाथ सीधे नहीं हुए हैं।
ठीक है, इसको करना है आपको चेयर पे बैठ के। सिर्फ कितनी देर तक? 2 से 3 सांस तक। अब हाथों को सर के ऊपर पलट के रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए और हाथों में जो वाइब्रेशन हो रही है उसको महसूस कीजिए। योग को करना नहीं है, इसको अपनाना है, महसूस कीजिए, तब इसका ज्यादा लाभ ले पाएंगे। एक्सरसाइज में तो सिर्फ हम हाथों को, शरीर को कुदा लिया, थोड़ा सा चला लिया, लेकिन योग में आपको अपने आप से जुड़ना होता है। जब जुड़ेंगी तो इन प्रभावों को महसूस कर पाएंगे। दोबारा से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, आंखें खोलेंगे सभी, और यहीं से श्वास खाली करते हुए अपने राइट साइड लेटरल बेंड कर जाइए, सीधी तरफ। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत। श्वास भरते हुए बीच में आ जाएंगी और इसी प्रतिक्रिया को अपने बाएं यानी कि लेफ्ट साइड से भी दोहरा जाएंगे। एक्सीडेंट हो गया, टकरा गए। श्वास भरते हुए बीच में आ जाएगी सभी, हाथों को वापस ले आएंगे। इस अभ्यास को करने से क्या होगा? देखिए, मैं ना भेड़ चाल पर बिलीव नहीं करती हूँ कि बस सुन लिया और पीछे पीछे भाग लिए। आपको पता भी होना चाहिए, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारी कमर, मेरुदंड, स्पाइन, क्योंकि आपके प्राणों का जो संचार होता है ना, वो स्पाइन से ही होता है। जब आपकी कमर सीधी रहेगी, प्राण शक्ति का संचार अच्छा रहेगा, इससे आपके नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि दिमाग आपका तेज होगा, दिमाग आपका शांत रहेगा, शरीर आपका शांत रहेगा। देखने में बहुत छोटा सा अभ्यास है, लेकिन लाभ इसके बहुत सारे हैं। शरीर का पोस्चर अच्छा होगा आपका। कमर में आपने देखा होगा कुछ लोगों की इस तरह से खूब निकल जाता है, इस तरह से बैठते हैं, है ना, और फिर यही आपको बीमारियों का घर बना देता है। तो जब कमर सीधी रहेगी, जैसे मैंने कहा था योगा आपको बैठना सिखाता है, तो आपका पोस्चर ठीक रहेगा। पोस्चर ठीक रहेगा, श्वास फिर श्वास की प्रतिक्रिया बढ़िया रहेगी। अभी मैं चैलेंज कर सकती हूँ यहाँ पर, एक में आप में से कोई भी एक मुझे इसमें बीट नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे कि मैं योग अभ्यास करती हूँ तो इसलिए नहीं। मैं अगर आप में से किसी को भी बोलूँ ना, अपनी श्वासें चेक कीजिए। चलिए आंखें बंद कर लीजिए सभी अपनी, और सीधे हाथ की हथेली को पेट पे रखेंगे। सीधे हाथ की हथेली को पेट पे रख जाइए, कमर गर्दन सीधी रखिएगा, बंद आंखों से सिर्फ अपनी श्वासों को देखना है, हर एक सांस को महसूस करना है, बिना किसी बदलाव के सिर्फ श्वास को देखते रहिए। मन की आंखों से महसूस कीजिए। अब अपनी सांसों के साथ अपने पेट के मूवमेंट को भी देख जाइए। श्वास लेते हुए पेट बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, सिर्फ इतना देखना है। 5 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरें, देखें पेट बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है। एक बार फिर से श्वास भरेंगे, श्वास खाली करते हुए पुनः देखिए। एक अंतिम बार श्वास भरते हुए अपने पेट के मूवमेंट को महसूस कर जाइए। धीरे धीरे सभी आंखें खोलेंगे। अब ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कितने ऐसे हैं श्वास भरते हुए पेट बाहर आ रहा है? हाथ ऊपर करना है। ठीक है। कितने ऐसे हैं श्वास भरते हुए पेट अंदर की ओर आ रहा है? बस। इसका मतलब ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया है। और जिनके हाथ नीचे हैं वो कौन से? पेट बाहर आएगा, कुछ के हाथ नीचे, कंफ्यूज, पता ही नहीं चला, है ना। देखिए, अब इसी को कहते हैं मन कितना चंचल है ना। मन में विचारधारा चल रही थी, इतने सारे थॉट्स आ रहे थे, तो पेट का मूवमेंट देख ही नहीं पाए। ठीक है, तो यही मैं आपको बताऊंगी प्रतिक्रिया कि किस तरह से मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं आप। तो आप सभी ने देखा, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि हमारा जब एक छोटा बच्चा होता है ना, न्यूबॉर्न बेबी, तो उसका आपने ब्रीदिंग पैटर्न देखा होगा। श्वास लेते हुए बच्चे का पेट अलग ही दिखता है मूव करते हुए, है ना।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी सांसें जो है वो छोटी होती जाती हैं और सारा खेल आपके शरीर में आपकी सांसों का ही है। सांसें निकाल लो तो शरीर बेकार है ना? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी हो गया है, उसकी वजह से ही हमारा लाइफ पैटर्न, ब्रीदिंग पैटर्न खराब हो जाता है और ब्रेथ खराब होने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और बीमारी होने की वजह से हमारा मन बेकार हो जाता है, हमारा शरीर बेकार हो जाता है। ठीक है, तो आप श्वासों पे काम कर लेंगे ना, तो श्वासों पे काम करने से भी आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। प्राण शक्ति इतनी जरूरी है आपके शरीर में, इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ देर आंखें बंद करके आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। वो भी नहीं आता, आंखें बंद करके सिर्फ 2 मिनट गहरा श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका पेट श्वास भरते हुए बाहर की ओर जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने देखा कुछ ऐसे हैं जिनका श्वास भरते हुए पेट अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि ये उल्टा हो रहा है। एक बलून होता है, बलून में जब आप श्वास भरते हैं, ब्लो करते हैं बलून को, तो वो बाहर की तरफ फूलता है ना, अंदर की तरफ तो नहीं जाता। दूसरा एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो अब आप सोच रहे होंगे मेरी श्वास की प्रतिक्रिया बेकार हो गई है, तो क्या ये ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। आपको सिर्फ सोते टाइम 5 मिनट अपने आप को देने हैं। सोते टाइम आपको श्वास भरते हुए डेलिब्रेटली, जानबूझकर अपने पेट को बाहर की ओर लेके आना है, श्वास खाली करते हुए पेट को अंदर की ओर लेके जाना है। ठीक है, जिनको कंफ्यूजन थी या जिनको कंफ्यूजन नहीं थी, सभी को ये अभ्यास करना है। जब आप ये करेंगे ना तो देखेंगे कि आपकी श्वासें दिन पे दिन बेहतर होती जा रही है, शैलो होती जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि हमें श्वासों को लंबा क्यों करना है, शैलो क्यों करना है? रियल लाइफ में डॉग, हमारे 2 एनिमल्स के मैं एग्जांपल ले रही हूँ, डॉग और टॉर्टोइस। डॉग की जो ब्रेथ होती है ना, श्वासें, वो बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी जल्दी हाँफते हुए श्वास लेता है। टॉर्टोइस जो होता है ना, बहुत गहरी शैलो ब्रीदिंग होती है उसकी। तो जितनी गहरी श्वास होती है ना, उतनी ही उसकी लाइफ होती है। आपने सुना होगा कि कछुआ हजारों साल जीता है, जबकि डॉग की लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं होती, उसकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। तो यही से आप रिलेट कर सकते हैं, जितनी अच्छी आपकी श्वासें होंगी उतना अच्छा स्वास्थ्य और उतनी अच्छी ही आपकी लाइफ होगी, उतना ज्यादा आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक आपको बताया अभ्यास, रात को सोते टाइम सिर्फ 5 मिनट आपको हाथ को पेट पे रखते हुए जानबूझकर अब श्वास भरते हुए पेट को बाहर लेके आना है, श्वास खाली करते हुए पेट को अंदर लेके जाना है। सिर्फ 5 मिनट इसका अभ्यास डेली कर लीजिए। ठीक है, चेयर योग का मैंने आपको 2 प्रैक्टिसेस बताई, स्ट्रेचिंग बताई है। स्ट्रेच आपने अपसाइड किया, इनसाइड लेटरल बेंड किया। ठीक है, ये आपकी कमर में, एक तो जो कमर कमरा बन गई है उसको भी कमर बनाने में मदद करेगा, पाचन शक्ति भी आपकी बेहतर होगी, आपका पोस्चर भी अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ भी बढ़िया होगी, रेस्पिरेशन भी। देखो एक अभ्यास के कितने फायदे हैं। ठीक है, आपकी पूरी मसल्स स्ट्रेच हो रही है, स्पाइनल मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं, आपका लंग्स पे पूरा खिंचाव आ रहा है, पेट पर खिंचाव आ रहा है, पेट की मांसपेशियां खींच रही है, तो पूरे आपकी ऊपर की बॉडी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका। सिर्फ आप ये बैठ करके कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा अभ्यास आपको बताने जा रही हूँ। कमर गर्दन को ना सीधी कीजिए सभी, और यहीं से श्वास भरेंगे। श्वास खाली करते हुए सभी अब अपने पीछे की ओर मुड़ने का प्रभाव करेंगे, कैसे प्रयास करेंगे। कैसे करना है आपको? आपको श्वास खाली करते हुए ट्विस्ट करना है, अपनी कमर को मोड़ना है। किस तरह से? आप मुड़ रहे हैं अपनी राइट साइड, तो अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे अपनी चेयर के राइट हैंडल पे और दूसरे वाले हाथ को पीछे की तरफ चेयर पे रख दीजिए। श्वास भरा, श्वास खाली करते हुए पूरा कमर को पीछे की ओर मोड़ दीजिए। सभी कर जाएंगे इसको। चेयर को पीछे पकड़ते हुए सपोर्ट लेंगे, कमर को पीछे ट्विस्ट कीजिएगा। दूसरी तरफ से भी दोहरा जाइए। कमर में खिंचाव आया ना सभी के? रिलैक्स, इससे आपका तनाव भी निकल जाएगा और साथ में जो भी टायर्डनेस है, जो भी स्ट्रेस है, वो भी दूर हो जाएगा। ओवर थिंकिंग हो रही है, वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल 3 प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई हैं। अगला अभ्यास यहीं से एक बार फिर आपकी श्वासों के लिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए श्वास भरते हुए। अब दोनों हाथ की हथेलियों को आप अपने ऑल्टरनेट शोल्डर ब्लेड्स पर रखेंगे, पीछे की तरफ कंधे पर।
अल्टरनेट क्रॉस पोजीशन में, एक रखना है सीधा हाथ उल्टे कंधे पर, उल्टा हाथ सीधे कंधे पर। इस दौरान कमर गर्दन सीधी रहे। देखिए कमर झुक गई है, कमर को सीधा रखिए। बहुत अच्छे। आंखें बंद करके अब अपनी श्वासों के साथ जुड़िए। धीरे से वापस आते हुए हाथों की पोजीशन चेंज कर लीजिए। कुछ की गर्दन आगे झुक गई है, गर्दन को सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा सभी। दूसरे, अभी जो हाथ नीचे था उस हाथ को ऊपर कर लीजिए, दूसरे हाथ से भी दोहरा जाइए और आंखें बंद रखते हुए श्वास पर श्वास के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। हर एक श्वास को मन की दृष्टि से देख जाए। बहुत अच्छी। धीरे से वापस आ जाइए। एक और अभ्यास। अब आप अपने सीधे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे श्वास भरते हुए और नीचे कर जाइए इसको 5 टाइम्स। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। रिलैक्स। किसी को कुछ फील हुआ? नहीं हुआ। अब इसको धीरे धीरे हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाइए और हाथ पर ब्लड सर्कुलेशन को फील करेंगे आंखें बंद करके। कर जाइए दोबारा, 2 बार दोहरा जाइए इसको भी। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आंखें बंद करके हाथ में जो भी संवेदनशीलताएं, जो भी वाइब्रेशंस हो रही है उसको महसूस कीजिएगा। पुनः श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे। रिलैक्स। अब जिन्होंने सच में महसूस किया होगा उनको फील हुआ होगा। कितनों को फील हुआ है पहली वाली प्रैक्टिस में और लास्ट वाली प्रैक्टिस में? डिफरेंस लगा? तो बस यही करना है आपको ना, सिर्फ अभ्यास नहीं करना है, उसको आंखें बंद करके महसूस भी करना है। एक लास्ट प्रैक्टिस मैं आप सभी को बताने जा रही हूं। सभी आंखें बंद कर लीजिए एक बार और बंद आंखों से अपने नासिका वाले भाग पर लेट जाइए, अपने नाक के अग्रभाग पर, आगे की तरफ। कमर गर्दन सभी की सीधी रहे इस दौरान। बहुत अच्छी। सिर्फ अपने नासिका वाले भाग पर ध्यान लगाना है। अब मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, उन सभी विचारों को रोकते हुए अपने नासिका से श्वासों को अंदर जाते हुए महसूस कीजिए। कैसे श्वास आपकी नासिका को छूते हुए आपकी दोनों नासिका रंध्र के माध्यम से शरीर के भीतर जा रही है। आपके गले से वेट पाइप से होते हुए आपके फेफड़ों तक पहुंच रही है। गहरा श्वास भर रहे हैं तो आपकी श्वास आपके फेफड़ों से नीचे जाते हुए पेट तक, नाभि तक पहुंच रही है और श्वास खाली करते हुए नाभि से श्वास बाहर की ओर आ रही है। पुनः श्वास भरते हुए नासिका से नाभि तक अपने ध्यान को केंद्रित रखें। हर एक श्वास को गहराई के साथ महसूस कर जाइए। धीमा, गहरा, शांत श्वास भरते हुए प्राणों को शरीर में महसूस कर जाइए। आपकी प्राण शक्ति जैसे जैसे श्वास भर रहे हैं आपका शरीर ऊर्जान्वित हो रहा है, पहले से भी ज्यादा ऊर्जावान। इस सकारात्मक ऊर्जा को शरीर के भीतर महसूस करें। श्वास भरते हुए देखिए आपका मन शांत हो रहा है। श्वास खाली करते हुए सारा दर्द, तनाव शरीर से बाहर निकल रहा है। चेहरे की मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं।
दूर हो रहा है। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बनाए रखते हुए गहराई के साथ अपनी श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। आपकी श्वास धीरे धीरे गहरी होती जा रही है, गहरी होती जा रही है। प्राणों का संचार पूरे शरीर में महसूस करें। अगर कहीं दर्द हो रहा है तो उस जगह को बंद आंखों से देखते हुए महसूस कीजिए। श्वास भरते हुए प्राणों को उस जगह तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। गहरा श्वास भरते हुए प्राण उस स्थान तक पहुंच गए हैं जहां भी दर्द की अनुभूति हो रही है। सारा दर्द हर एक जाती हुई श्वास के साथ बाहर जा रहा है। पूर्ण रूप से आपका शरीर ऊर्जावान हो गया है। आपका शरीर तनाव मुक्त हो गया है, दर्द मुक्त हो गया है, शिथिल हो गया है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। 2 बार और गहरा श्वास भरते हुए गहरा श्वास खाली कर जाइए। मन में एकमात्र विचार आपकी श्वासों से जुड़ा हुआ हो। आपकी श्वास ही एकमात्र साधन है आपके मन को नियंत्रण करने के लिए। पूर्ण एकाग्रता श्वासों के प्रति बनाए रखें। One last time, deep inhale and deep exhale. धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए आंखें खोल जाएंगी। कितने यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं रिलैक्स हो गई? सच में बताना है। अब सबको देख करके जबरदस्ती हाथ ऊपर नहीं करना है। अगर सच में लग रहा है कि थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन मन को शरीर को मिला है तो हाथ ऊपर कीजिएगा। चलिए, इसका मतलब आपने अभ्यास अच्छे से किया है, बहुत अच्छा। एक प्राणायाम का अभ्यास मैं और बताना चाहूंगी। इसको आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए, जब मैं करवा रही हूँ तो थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे ना प्रैक्टिकली, तो उस टाइम पर आप सोचेंगे कि डेस्क पर 1 घंटा लगेगा। नहीं, आपको सिर्फ 2 मिनट देना है। 2 मिनट अपनी श्वासों को देना है। बॉडी भी रिलैक्स, माइंड भी रिलैक्स, स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा, तनाव भी दूर, छू मंतर हो जाएगा। ये जादू की गुड़िया है, ठीक है? क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरी हमारी श्वासें होती है। श्वास ही एकमात्र साधन है आपके मन को कंट्रोल करने का, ठीक है? तो आंखें बंद करके जब भी लगे ना स्ट्रेस हो रहा है, कहीं फंसे हुए हैं प्रॉब्लम में, कुछ नहीं समझ आ रहा, सिर्फ आंख बंद करके श्वास को देखना है और थोड़ा सा गहरा श्वास प्रश्वास का अभ्यास कर लेना है। ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 से 25 बार। इतनी बार तो आसानी से कर सकते हैं ना। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब आंखें खोलेंगे कि आप एकदम से चार्ज हो गए हैं, जैसे मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज हो जाती है, ठीक है? तो ये मैंने आपको आपका चार्जर दे दिया है और आपको अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कब, कैसे, कहाँ यूज करना है, ठीक? एक प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम की मैंने बात की थी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नाड़ी की शुद्धि करना, है ना? तो ये भी आप डेस्क पर बैठकर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल अभ्यास है। पहली 2 उंगलियां राइट हैंड की अपने थंब रूट के पास ले जाइए। इस तरह से सभी प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। पहली 2 उंगलियों को अंगूठे के मूल भाग पर लगाते हुए लास्ट की 2 उंगलियां खुली रहेंगी। अब यहीं से कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद कीजिए और अपने अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर जाइए। टाइटली प्रेस नहीं करना है, आंखें बंद करके इंस्ट्रक्शन सुनिएगा सभी। हल्के से हल्के हाथों से दबाव देते हुए राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया। लेफ्ट से आपको श्वास भरना है।
अब देखिए सबकी श्वास लेने की आवाज आने लगी। श्वास बिल्कुल सहज हो, शांत हो, इतना धीमा हो कि आप ही अपनी श्वास को महसूस कर पाए, बगल वाले को श्वास लेने की आवाज भी नहीं आए। अब जो श्वास भरा है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, उसको खाली करना है राइट नॉस्ट्रिल से। अब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास खाली कर दिया है, राइट से दोबारा श्वास भर जाएगी। और लेफ्ट से श्वास खाली कर जाएगी। कंडीशन इस दौरान कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद रहे, हर श्वास धीमा, गहरा, शांत हो, बिना किसी जल्दबाजी के, लयबद्ध हो। जितना श्वास भर रहे हैं उतना ही श्वास खाली करना है। इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों बैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा शरीर और मन दोनों शांत हो जाते हैं, काम, रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे श्वास खाली करते हुए धीरे से अभ्यास को विराम देंगे और हाथ को वापस लाएं, आंखें बंद ही रखें, प्रभाव को देखें अपने मन पर, अपने शरीर पर। श्वासों के इस अभ्यास को महसूस कर जाएं। धीरे से सभी पलकें झपकाते हुए आंखें खोल जाएं। तो ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देने के लिए क्विक प्रैक्टिस है कि आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाए, काम यानी कि बिल्कुल शांत स्टेट में आ जाए, है ना, तनाव दूर हो जाए। तो बहुत अच्छा अभ्यास है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का। इसको मैं देख रही थी, कुछ आंखें खोल कर रहे थे, आंखें खोल के नहीं करना है, आंखें बंद करके ही करना है, तभी आप इसके लाभ ले पाएंगे। ठीक है, एक क्विक प्रैक्टिस, आपको डेस्क पे जब आप बैठे हैं तो एक वाटर बॉटल आपके पास रहती है ना। जब भी आपको लगे कि थकान हो रही है, दर्द हो रहा है, मन बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, थक गया है, पानी लेना है, एक घूंट पीना है। अब हम क्या करते हैं, बॉटल खोली या ग्लास उठाया और एक ही सांस में पूरा पानी गटक गए, जो कि गलत तरीका होता है। घूट घूट करके पानी पीना है। आपने एक घूट पानी लिया, उसको मुंह में घुमाया और फिर अंदर लेके गए, क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं जो आपके पेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, खाने को पानी की तरह और पानी को खाने की तरह लीजिए, है ना। पानी को कैसे लेना है, खाने की तरह खाना है, और खाने को कैसे, पानी की तरह पीना है। हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, बाइट लिया खाना, 2 बार चबाया और उसको गटक गए। पानी को क्या करते हैं, एक बार में ही गटक गए। बॉटल है तो बॉटल को एक बार ऊपर से लिया, पूरा एक बार में गटक गए, गलत तरीका है ये। तो सिप सिप करके बीच बीच में पानी भी पीते रहेंगे, इससे भी आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स रहेगी। ठीक है, मैंने एक श्लोक बताया था जिसमें आपको युक्त आहार के बारे में बोला था। अब जो हमारा आहार है ना, आहार पे हमें 80% हमारे शरीर पर आहार का काम होता है। ठीक है, 20% आजकल का जो लाइफस्टाइल है सेडेंटरी हो गया है, यानी कि हम अपने शरीर को नहीं चलाते, मशीनें इतनी सारी हो गई हैं, सारा काम करा कराया मिल जाता है ना। इस वजह से भी पहले की और अब की हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आया है, लाइफस्टाइल में इतने बदलाव हुए हैं, और इस वजह से ही पहले तो ये सब बीमारियां नहीं थी, अभी आई है ना। पहले के टाइम पर तो इतनी खतरनाक बीमारियों के नाम भी नहीं सुने थे, लोग 100 साल से ऊपर जी जाते थे। अभी क्यों आ रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल बेकार हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट खान पान बेकार हो गया है। खाने की बात करें कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो खाने में जो भी आपका सीजनल, रीजनल और फ्रेश, सिर्फ ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। सीजनल, रीजनल और फ्रेश, ये 3 चीजों पे ध्यान रखना है। सीजनल यानी कि जो भी आपके सीजन में आ रहा है, यानी कि गर्मियों में ठंडा खाना आता है जिसकी तासीर ठंडी होती है, तो वही खाना है। गर्मियों में अगर आप सर्दियों का खाना खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, या फिर सर्दियों में अगर गर्मियों का खाना खाएं तो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सीजनल खाना खाना चाहिए। दूसरा रीजनल,
यानी कि नॉर्थ में जो खाने का चलन है वही खाना खाएं, साउथ में जो खाने का चलन है वही खाना खाएं, ठीक है। और तीसरा हमारा आ जाता है फ्रेश, यानी कि ताजा खाना। लेकिन हम तो उल्टा कर रहे हैं आजकल, जंक खा रहे हैं, प्रोसेस्ड खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, है ना। तो अब आप बोलेंगे कि सुबह से शाम तक ऑफिस में रहते हैं तो फिर क्या खाना है। आप फ्रूट्स ले आइए, सैलेड ले आइए, उसको काट के मत लाइए, साबुत ले आइए। बनाना है आपका, है ना। आजकल आपका मैंगो आ रहा है, मैंगो ला सकते हैं आप, लंच टाइम में खा सकते हैं, है ना। उसको अब बोलेंगे कैसे खाएं, मैंगो को तो खाना भी पॉसिबल नहीं है। स्पून है, स्पून से आप इजीली खा सकते हैं बीट करके उसको, है ना। तो आप मैंगो खाइए, आपका सीजनल फ्रूट है। बनाना आप खा सकते हैं। इस तरह से आपकी रफेज में सैलेड में अगर हम बात करें, खीरा आजकल चल रहा है, पूरे दिन आपको हाइड्रेटेड रखता है। आजकल माइग्रेन की प्रॉब्लम इतनी हो गई है जिसकी वजह से सर दर्द होता है, तनाव, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, है ना। तो खीरा खाएंगे तो ये आपकी माइग्रेन की समस्या भी दूर हो जाएगी। सुबह एक खीरा डेली खा लो, लेकिन कभी भी ना सैलेड्स को और फ्रूट्स को काट करके मत लेकर आओ, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स ना तभी डेड हो जाते हैं। आपने सुबह उसको काट करके पैक कर दिया टिफिन में और दोपहर को आप खा रहे हैं, तब तक उसके सारे न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं, मर जाएंगे, क्योंकि वो हवा के कांटेक्ट में आ गया। ठीक, तो कोशिश कीजिए फ्रूट्स और सैलेड आप ऐसे लेकर के आए और ऑफिस में उनको साबुत खाएं। इसी तरह से खाना बनने के 1 से 2 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। सुबह का खाना रात को नहीं, रात का खाना सुबह को नहीं। क्यों? क्योंकि खाना हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें शरीर में ऊर्जा मिल सके, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारा मन भर सके। आज पिज्जा है, आज मोमोज है, आज बर्गर है ना। कुछ यहाँ पर ऐसे होंगे क्योंकि आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल को काफी लोग फॉलो भी कर रहे हैं, जो कि फॉलो करते भी होंगे। तो कोशिश कीजिएगा, खाना लेकर आ रहे हैं तो 1 से 2 घंटे के अंदर खा ले, या फिर आपके यहाँ पर भी कैंटीन में ताजा खाना बना है, ताजा खाना खाइए, ठीक है। सुबह अपना ब्रेकफास्ट इतना अच्छा रखिए कि पूरे दिन आपकी एनर्जी बनी रहे, कि आपको जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। योगी जो होते हैं वो एक बार खाते हैं, और जो रोगी होते हैं वो सारा दिन खाते रहते हैं। और सारा दिन खाएंगे तो क्या होगा? मोटापा भी होगा, डायबिटीज भी होगा, और बाकी जो परेशानियां है ना सब बढ़ेंगी, ठीक है। तो सारा दिन नहीं खाना है, रोगी नहीं बनना है, योगी बनना है। योगी का मतलब अब ये नहीं होता कि सारा दिन समाधि लगा रहे हैं, सारा दिन योग अभ्यास कर रहे हैं। योगी का मतलब है अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में जीना, सही लाइफस्टाइल को अपनाना। तो सही खान पान को अपनाइए, सही खाने को खाइए, सही टाइम पर खाइए और सही टाइम पर सोइए। सही टाइम पर सोना, 9 से जो 2 का टाइम होता है ना, ये आपका ग्रोथ सिस्टम होता है। रात को 9 बजे, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे सो जाइए। हम लोग 12 बजे 1 बजे सोते हैं और फिर सुबह जल्दी उठना है। सारा हमने खुद ही, जो प्रकृति हमें देती है ना सिग्नल्स, उसको हम उसके विपरीत ही करते हैं। तो जो प्रकृति कह रही है रात को 9 बजे सोइए, 2 बजे, 9 से 2 का जो टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ब्रेन को, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। फिर उसके बाद 3 बजे आपका, आधी दुनिया 3 बजे उठ भी जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे जो 3 बजे उठते हैं, और उनको आप देखेंगे ना उनकी बॉडी में, और जो इंसान 6-7 बजे के बाद उठ रहा है उसकी बॉडी में, दोनों की बॉडी में अलग डिफरेंसेस दिख जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने पर्सनली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं योग में आने के बाद। 2023 में मेरा बहुत अच्छा वाला एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सर्जरी होगी, और मैं पहले एडवांस योग करती थी तो मुझे लगा था अब तो मैं योग में कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था, लेकिन एक सीनियर सर्जन ने मुझे देखकर बोला ये तो अभी बहुत यंग है, ये तो बच्ची है और ऐसी हील कर लेगी। मेरी देखने में उम्र कम लग रही है लेकिन उम्र कम नहीं है मेरी, मैं mid-30 में हूँ। और जब डॉक्टर ने ऐसे बोला ना तो मुझे वो ही छोटा सा स्पार्क था कि बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगा। फिर मैंने योग में ध्यान किया, प्राणायाम किया, खान पान अपना, और मैं नॉनवेज भी नहीं खाती हूँ। मैं पंजाबी हूँ, हमारे घर में खाया जाता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अंदर से मन नहीं होता। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ। देखिए वो सबका पर्सनल अपना चॉइस है, जो खाना है नहीं खाना है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ मैंने वेजिटेरियन डाइट पर और सिर्फ प्राणायाम और ध्यान से बिना ऑपरेशन के अपने, जो मेरा फ्रैक्चर हुआ था कॉलर बोन में, बोन मेरी इतनी ज्यादा गैप आ गई थी, वो वापस से मेरी लोकेट हो गई। और उसके बाद मैं 1 साल भी नहीं हुआ था वापस से एडवांस योग भी करने लगे।
और ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल पॉइंट था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था। फिर उसके बाद मैंने सुना था कि 30 के बाद एडवांस योग कर ही नहीं सकते। क्यों? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो जाती है, शरीर नाजुक हो जाता है, बहुत सारी इंजरीज हो जाती है। लेकिन आप जब हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे ना, तो अपने आप देखेंगे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो शरीर अपने आप एक्टिव रहेगा, भागता कूदता रहेगा, सारे जितने भी काम है ना सुबह से शाम तक अपने आप होते चले जाएंगे। और बिलीव कीजिएगा, जो आप अभी काम कर रहे हैं ना, उससे बेटर आप आउटपुट दे पाएंगे, ऑफिस में भी, घर पर भी, अपनी लाइफ में भी। मैंने पर्सनली काफी चीजें एक्सपीरियंसेस की हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और आज की डेट में, और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कोई मुझे ये बोलता भी नहीं था इसको देख करके कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मैंने दर्द को महसूस नहीं किया था। और उस टाइम भी मैं काम करती रही थी। मैंने सिर्फ 1 हफ्ते दवाइयां ली थी, उसके बाद सिर्फ मैंने योग के माध्यम से ही अपने उस फेज को क्रॉस किया, और मैंने पूरी तरह से उसको ठीक भी किया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्ति, मैजिक नहीं है। मैंने ऐसे पेशेंट्स आपको एग्जांपल दिए कि जिनको कैंसर हो गया, ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया है और उनका कैंसर भी ठीक हो गया है, लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है। योग ऐसा, हम मेरे पास जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं वो आकर के बोलते हैं कि मैम मुझे ये दिक्कत है और मुझे ये ठीक करा दो योग से। तो मैं उनको बोलती हूँ योग कोई मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है कि बस खाया और अभी ठीक हो गया। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, हमें कुछ प्रॉब्लम हुई ना, हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते जाते ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है, आधी बीमारी तो तभी खत्म हो जाती है कि दवाई मिल जाएगी, अब हम ठीक हो जाएंगे दवाई खाने से पहले, और बाकी बीमारी दवाई खाने के बाद ठीक हो जाती है। तो जिस दिन ब्रेन में ये सिग्नल मिल जाता है ना कि मैं ठीक हो जाऊंगी, उस दिन आपकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। तो मैं पहले दिन ही बोल देती हूँ कि अगर आप मेरे पास 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए आए हो, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगी। आपको धैर्य, पेशेंस रखना होगा। जब आप पेशेंस रखेंगे तो हो सकता है आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि फिर चलो बस दवाई खा ली, ठीक हो गया, उसको छोड़ दो। उसको रेगुलर करना है। रेगुलर करेंगे तो वो बीमारी तो होगी नहीं, बाकी बीमारियां भी आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी योग की महत्वता को समझिए, बीमारियों से दूर रहिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने शरीर पे काम कीजिए, अपनी पहली रानी पर ध्यान दीजिए सभी। ठीक है, शरीर पर ध्यान देंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी को और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आप देख के बोलते हैं ना, ये कितना खुश है, अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहा है, इसको पता नहीं कौन सा ट्रेजर मिल गया है ना, कौन सा खजाना मिल गया है। तो सब आपको देखकर भी यही बोलेंगे। ठीक है, चलिए बस इतना सा ही मेरा आप सभी से निवेदन था। अपने आहार को ठीक कीजिए, अपने विहार को ठीक कीजिए, कर्म अपने आप ठीक हो जाएंगे जब योग अभ्यास करेंगे। और अपनी निद्रा को ठीक कीजिए, सही टाइम पर सोना है, सही टाइम पर उठना है, और इसी श्लोक में आपका पूरा योग आ गया है। अगर आपने ये 4 चीजें ठीक कर ली ना, आपकी लाइफ पूरी ठीक हो जाएगी, और सब आपको देख करके बोलेंगे कौन सी जादू की गुड़िया थी, ये हमें भी दे दीजिए। क्योंकि मेरे साथ ये होता है, सब देख करके बोलते हैं, मेरे संस्थान में बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि तुम कभी थकती नहीं हो, भागती रहती हो। सुबह से लेके मैं सुबह उठ जाती हूँ 3:30 बजे, अलार्म लगाती हूँ 4 बजे का, अपने आप आंख खुल जाती है। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और सैलून जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल ब्यूटी मिल जाएगी आपको। चेहरे पर ग्लो, तेज, ब्लश, बाल कभी काले नहीं होंगे, डाई से जरूरत नहीं पड़ेगी डाई की, आपके नेचुरल ही बाल काले हो जाएंगे। सफेद होने की आपको, जब बोलते हैं कि सफेद हो गए हैं अब हमें डाई लगा दीजिए, हाँ अच्छा सर का ये भी बहुत अच्छी बात है। कुछ का ये भी रहता है कि बस बाल ही रह जाए, है ना तो बिल्कुल काले हो या सफेद हो, बाल भी बचे रहेंगे आपके, है ना। तो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और आपकी पर्सनालिटी को देखकर ही आधे से ज्यादा काम आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मुझे लगता है काफी कुछ सीख गए होंगे, और मैं एक बार फिर से सभी से दिल से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस योग दिवस पर आप सभी योग को अपनाएं। सुबह 15 से 20 मिनट, नहीं तो अपने डेस्क पर जरूर कीजिएगा 5 से 10 मिनट। धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे, जैसे मैंने बोला मैं योग थेरेपिस्ट भी हूँ, मैंने मास्टर्स की हुई है योग थेरेपी में,
और किसी भी तरह का आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ, आहार से जुड़ा हुआ कुछ भी प्रश्न है, योग एक ऐसी दवाई है, सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। आजकल ये समस्या बहुत आम हो गई है, जैसा कि सर ने बोला भी था कि मैं काफी सारे लाइव सेशन दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने देखा है कॉमन है लोअर बैक पेन। हमारा जो लंबर रीजन होता है ना, रीढ़ की हड्डी का निचला भाग, वहां पर बहुत बैक पेन होता है। तो इसका कारण क्या है, सबसे पहले तो वो समझना है। कई बार क्या होता है, एज की वजह से ना डिस्क हमारी इधर उधर खिसक जाती है, या कई बार पॉस्चर की वजह से, गलत पॉस्चर में बैठने से भी हो जाता है, गलत सोने की वजह से भी हो जाता है, डीजेनरेशन मतलब आपकी उम्र बढ़ रही है, उस वजह से सेल्स आपके वीक हो गए हैं, डीजेनरेटिव इश्यूज हो सकते हैं, है? तो पहले कारण समझना है, उसके बाद बिल्कुल योग कर सकते हैं। योग करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। आपको कारण इसलिए समझने की जरूरत है, अगर आपकी प्रॉब्लम गंभीर है तो उस सिचुएशन में तो आप एक्सपर्ट की गाइडेंस में कीजिए, और अगर आपको शुरुआती स्तर पे पता चल गया है तो उसमें आप अपने आप से घर पर भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आपका स्पाइनल स्ट्रेचिंग आप जो भी करेंगे, लोअर बैक पेन में आपको हेल्प करेगा। जी और जी most of the exercises are related to breathing only, but in Delhi most of the time it is related. So how to avoid that one and how to get the full benefits by doing exercise? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, अब हम वही चीज है ना, मैंने क्या कहा, एक्सटर्नल चीजों पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, इंटरनल चीजों पे तो काम कर सकते हैं ना। अपनी इम्यूनिटी को, इनका प्रश्न जिन्होंने नहीं सुना है मैं बता दूं कि आजकल का खास तौर पर दिल्ली में हम बात कर रहे हैं, एयर क्वालिटी बहुत डाउन हो गई है, एनवायरनमेंट बहुत दूषित हो गया है, हवा। तो आप सभी जब प्राणायाम करेंगे ना, अपनी इम्यूनिटी पे फील करेंगे, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है, आप दूषित हवा में भी जाएंगे, वहां पर भी आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, कोविड में भी कुछ आपने देखे होंगे कि पेशेंट्स के जो कोविड अफेक्टेड है उनके बीच में गए हैं और उसके बाद भी उनको अफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको बस वही बढ़ानी है। तो योग अभ्यास करने से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपके प्राणों का भी संचार बढ़िया से रहेगा, और आप पॉल्यूटेड एयर में भी अपने आप को, अपने लंग्स को ठीक रख पाएंगे। हाँ, वो जो स्वच्छ वाली हवा है वैसा तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली जो अभ्यास नहीं कर रहे हैं उनसे आप बेहतर फील कर पाएंगे। जी और कोई प्रश्न? जी, 3 बार शांति। धन्यवाद याद दिलाने के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ में ना दुखों के पहाड़ होते हैं। 3 तरह के दुख हमें मिलते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इन तीनों दुखों को अपने आप से दूर रखने के लिए हम 3 बार शांति ही बोलते हैं, कि किसी तरह का दुख हमें नहीं मिले। और इसीलिए सब दुखों की ही माया है। दुखों से दूर रहने के लिए आपको योग अभ्यास करना है। योग करेंगे तो सारे दुख आपसे दूर रहेंगे। योगो भक्ति दुखः। जी और कोई प्रश्न? योग मुद्रा। योग मुद्रा काफी डीप टॉपिक है और काफी एडवांस प्रैक्टिस भी है। कोर्सेज तो नहीं है, आप उसके लिए 1 मंथ का कोर्स कर सकते हैं। और अभी अच्छी बात ये है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने ना, जब से ये पैंडेमिक वाला हमारा टाइम आया था, लॉकडाउन वाला, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपके लिए कोर्सेज निकाल दिए। तो आप चाहें तो अपने लिए 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं, 1 से 2 घंटे का। तो ऑनलाइन मोड पर भी 1 मंथ का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। डेली में टाइम नहीं है, वीकेंड पे भी आप कर सकते हैं, सैटरडे संडे पर भी, लेकिन वो कोर्स आपको फिर ऑफलाइन करना होगा, सैटरडे संडे वाला। और इसके अलावा इसमें जब आप करेंगे तब आपको मुद्राएं, ध्यान, प्राणायाम थोड़ा और आपको डेप्थ में नॉलेज मिलेगा। जी जी सर। वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल ये, हाँ बिल्कुल ये सही बात है। 3:30 बजे उठना
संभव है, लेकिन पूरे दिन अपने आप को उसी तरह से चार्ज रखना, क्या ये संभव है? क्या दिन में तो नींद नहीं आती? तो देखिए, जब आप रात को सही समय पर सोएंगे ना, मैं अपनी लाइफ में, मैं अपने घर में ना जब पहुंचती हूँ, उसके बाद मेरा डेली का फिक्स है, मैं 6 से 7 के बीच में खाना खा लेती हूँ। मैक्सिमम 8 बजे से पहले 8 बजे के बाद कभी नहीं होता मेरा। 1 घंटे का टाइम, और हमेशा अपनी फैमिली को जरूर टाइम देना चाहिए। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, आधा तनाव तो ये फोन है, बीमारी की जड़। घर जाकर भी फोन पे लगे रहते हैं। पहले के लोग आपस में बैठते थे, बातें करते थे, तो आधा तनाव तो तब दूर हो जाता था, है ना? तो थोड़ा सा जब घर पहुंच जाते हैं ना, तो फोन को बंद करके साइड में रख दीजिए। सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले फोन को यूज मत कीजिएगा। अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, और फिर देखिएगा मन कितना शांत, मन कितना बढ़िया होता है। फैमिली भी खुश, आप भी खुश। और फिर जब आप सही टाइम पर सोएंगे ना, अपने आप 4 बजे से पहले ही आंख खुल जाएगी, अलार्म से पहले आंख खुल जाएगी, और पूरे दिन एनर्जी भी बनी रहेगी। किसी दिन मैं अगर लेट उठती हूँ ना, तो मुझे उस दिन अच्छा नहीं लगता, उस दिन मुझे अपसेट लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ मिसिंग है, कि आज मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया है। तो ये जब आप करेंगे ना, तो आपको भी लगेगा। लेकिन जिस दिन मैं सुबह उठती हूँ ना, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक रोड है जहां पर गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, आपको वहां तक पहुंचना है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रोड खाली होना चाहिए। खाली रोड पे जाएंगे तो हर चीज को एंजॉय करते हुए जाएंगे। लेकिन जब आप ट्रैफिक में जाएंगे, वहां पहुंचने में भी समय लग जाएगा, और आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाएंगे, गुस्सा भी बढ़ जाएगा, है ना? तो सुबह जब मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें पूरी साइलेंस रहती है। थोड़ा टाइम अपने आप को देती हूँ, और फिर उसके बाद पूरा दिन वो एनर्जी लेवल बना रहता है, क्योंकि मेरा खान पान इस तरीके का है। मैं सात्विक आहार के, मैं आपको बोलूंगी तो आप बोलोगे आप तो हमें पूरा सन्यासी बना दोगे। मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, प्योर सात्विक खाना मैं खाती हूँ, जिसको आपकी लैंग्वेज में शायद बॉइल्ड फूड कह सकते हैं। बॉइल्ड फूड तो नहीं, कम सेमी कुक फूड, क्योंकि खाना पकाने का जो मतलब है ना, वो इसलिए पकाना होता है कि ताकि खाना हमें पच जाए। लेकिन हम ओवर कुक कर देते हैं। ओवर कुक क्यों कर देते हैं हम? कि टेस्ट चाहिए होता है, स्पाइसी कर दिया, बहुत उसको डीप फ्राई कर दिया, वो नहीं करना है। कम पकाइए, कम पका हुआ सेमी कुक खाना खाएंगे, तो इससे भी आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रहेगी, उम्र नहीं बढ़ेगी, हमेशा जवान लगेंगे। ठीक है? तो सुबह टाइम टू टाइम एनर्जी बनी रहेगी। लेकिन कभी अगर ऐसा लगे, तो आयुर्वेद में कहा गया है दिन में सोना नहीं चाहिए, लेकिन कभी लग रहा है तो आप 5 से 10 मिनट की पावर नैप ले सकते हैं। चेयर पे बैठ के, डेस्क पे बैठ के, सिर्फ ब्रेन को, बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। नींद आ रही है तो नींद को रोकना नहीं चाहिए सिर्फ, लेकिन 5-10 मिनट्स की हम उल्टा करते हैं, कुंभकर्ण की तरह सो गए, वो नहीं करना है। ठीक है जी? और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, मतलब लेक्चर बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ समझ आ गया है। धन्यवाद बहुत बहुत सभी को।